सो थॉमसन ने ये देखा कि एक स्ट्रीम बीम ऑफ जो पार्टिकल्स है जिससे कैथोड रेज बनी है, दे मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट? व्हाई दे मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज्ड? बिकॉज दे वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सो दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट when electric field is applied. So that kind of proved that the particles are negatively charged. ठीक है? So positive plate की तरफ वो deflect होते हैं जब electric field apply करते हैं. दूसरा, because obviously they are moving towards the positively charged anode, so that also proved that they must be negatively charged particles. फिर जब mica wheel on the way रखा गया तो क्या observe करते हैं कि this mica wheel rotates. So that proved that these particles possess kinetic energy. They are material particles. ठीक है? So they possessed kinetic energy, right? Other than that, जब एक thin foil को place करते हैं, तो these rays can pass through the thin foil, and they also cause heating of the thin foil. ठीक है? तो again transfer of energy is taking place. So जो भी एनर्जी है पार्टिकल्स की वो ट्रांसफर हो रही है, उसकी वजह से हीटिंग अप हो रहा है ना? ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज टेकिंग प्लेस. सो थॉमसन कॉल्ड these material particles, these negatively charged material particles as electrons. ठीक है? negatively charged material particles constituting the cathode rays were called as electrons. Constituting cathode rays were called as electrons. अच्छा, other than all this, what did he observe? कि जब यहाँ पर material of cathode change किया, ठीक है, material of cathode change किया, गैस को change किया, तो क्या होता है, जो ये particular particles है, electrons, इनका जो charge to mass ratio, he calculated the charge to mass ratio how? By changing the material of the cathode and changing the gas present in the discharge tube. So he noticed the E by M ratio remains constant. E by M ratio remains constant. It does not depend upon the nature of the gas. ठीक है? तो यहाँ से उसने क्या conclusion निकाला कि जो charge on particles है, that does not change, that does not depend upon the nature of the gas, neither the mass. कि जो particles है, they have the smallest possible charge and mass. ठीक है? जब कैलकुलेट किया गया E by M रेशियो तो कांस्टेंट आ रहा था, तो वहां से क्या कंक्लूजन निकाला कि जो E by M रेशियो है, चार्ज टू मास रेशियो है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ कैथोड एज वेल एज द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द ट्यूब. ठीक है? बिकॉज एवरी टाइम विद डिफरेंट गैसेस विद डिफरेंट मटेरियल्स the E by M ratio remained constant. ठीक है? अब E by M क्या है? चार्ज टू मास रेशियो. So soon after this cathode ray experiment, the charge on the electron was calculated by the Millikan's oil drop experiment, and it was found to be the charge on electron as calculated from Millikan oil drop experiment was found to be 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. Right? अब E by M versus E, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? Mass was calculated. ठीक है? E upon E by M लिख लेते हैं. E upon E by M. So यहाँ से क्या आ जाएगा? Mass of electron. So the charge cancels out. So that was how the mass of electron was calculated. ठीक है? तो mass of electron calculated was 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. And what is the E by M ratio? It is 1.76 into 10 to the power 8 coulombs per gram. And this remained constant. This E by M ratio remained constant irrespective of the nature of the gas taken in the tube and the material of the electrode taken. ठीक है?
तो यहाँ से पता चला कि कैथोड रेज एक ही तरह के पार्टिकल से कंपोज्ड है, चाहे कोई भी गैस है, कोई भी मटेरियल ऑफ कैथोड है. So that was how the electrons were discovered. The same experiment was done by Goldstein. The same cathode ray experiment was repeated by Goldstein. What did he do? He took a perforated cathode. ठीक है, उसने उसके पीछे क्या किया, वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दिया. जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या होता है? Zinc sulfide is a fluorescent material that glows when some radiations fall on it. So now this is cathode which is perforated and the other side we have anode. The same experiment repeated. अब क्या हुआ, यहाँ पर जो radiations थी वो cathode की तरफ जा रही थी and it appeared as if the radiations are coming from anode towards cathode. So these rays were called as anode rays. ठीक है. So Goldstein performed the same experiment. And what did you observe? There were some rays coming from anode towards cathode, so they were called as anode rays. ठीक है. अब ये रेस कहाँ से originate कर रही थी? जो cathode rays थी, they were coming from cathode to anode, and the particles were negatively charged. But these particles, so when electric field was applied, क्या observe किया गया कि जो anode rays जिन particles से बनी है, they are positively charged because they were deflected towards the negative प्लेट. ठीक है. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डिफ्लेक्शन किस तरफ था? टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट. सो दैट शोड दैट दीज पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो दीज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहे थे? ठीक है, जस्ट मेक इट अगेन. सो दिस इज कैथोड एंड वी हैड the same experiment, cathode ray experiment repeated by Goldstein, and here we have anode and the rays seem to move towards cathode. ऐसा लग रहा था वो anode से cathode की तरफ जा रही है, इसलिए उनको Goldstein ने क्या बोला? Cathode rays. अब ये positively charged थी, right? These were positively charged, and every time when the gas taken was different. जब यहाँ पर different gas लिया गया, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल लिया गया, सो जो E/M रेशियो था दैट वाज नॉट कांस्टेंट. इट वाज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. ठीक है, जो चार्ज टू मास रेशियो था दैट वाज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ गैस. सो गोल्डस्टीन ने क्या किया? ही टुक द सिंपलेस्ट हाइड्रोजन गैस. ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है? इट स्प्लिट्स अप इनटू हाइड्रोजन एटम्स. So when so much energy passes through the glass tube, जो हाइड्रोजन एटम्स है, they split up molecules है, they split up into hydrogen atoms. अभी जो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ प्रेजेंट है, इनके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. अब जब कैथोड रेस इनको स्ट्राइक करती है तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाता है. ठीक है. अब जब इसमें से ये हाइड्रोजन एटम था, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो क्या बचा? हाइड्रोजन आयन. So what are we left with? See, this is hydrogen nucleus and this is one proton inside the nucleus और एक इलेक्ट्रॉन है. अब इलेक्ट्रॉन तो निकल गया बाहर एटम में से, तो क्या बचा? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन बच गया. अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है ये किसकी तरफ मूव करेगा? नेगेटिव चार्ज रॉड की तरफ, है ना, नेगेटिव प्लेट की तरफ. सो दीज प्रोटॉन्स प्रेजेंट हियर, they are positively charged, so they move towards the negatively charged plate. ठीक है. और अगर हम हाइड्रोजन की जगह हीलियम लेंगे, so suppose we have helium has 2 protons and 2 electrons. अब हीलियम के केस में क्या है? हीलियम 1 पॉजिटिव भी शो कर सकता है, 2 पॉजिटिव भी. अगर इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो हीलियम के ऊपर टोटल चार्ज क्या है? 2 पॉजिटिव. Whereas हाइड्रोजन के ऊपर टोटल चार्ज क्या है? 1 पॉजिटिव. सो द चार्ज वेरीज, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द एटम टेकन. हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज है. ऐसे ही हम कोई और एटम लेंगे, उसके ऊपर 3 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज है. सो द चार्ज वेरीज, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एटम, राइट. एंड मास ऑल्सो, मास ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट, हाइड्रोजन आयन इज डिफरेंट फ्रॉम द मास ऑफ द हीलियम एटम. ठीक है. तो इसीलिए चार्ज बाय मास रेशियो यहाँ पर डिफरेंट आ रहा था, बिकॉज यहाँ पर जो गैस है, गैस से आयंस बन रहे थे. तो गैस जब आयनाइज होती है तो
जो भी हमने गैस के एटम्स लिए होंगे उसका चार्ज वेरी कर सकता है, उसका मास वेरी कर रहा है, इसलिए चार्ज बाय मास रेशो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बिकॉज एनोड रेज किससे बन रही है? एनोड रेज बन रही है फ्रॉम द आयंस विच आर फॉर्म फ्रॉम दीज गैस एटम्स, ठीक है, इसलिए चार्ज बाय मास रेशो इज नॉट कांस्टेंट। अब गोल्डस्टीन ने क्या किया, ही टुक द सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही प्रोटॉन है, सो यहाँ पर चार्ज सबसे मिनिमम आएगा बिकॉज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, सो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ठीक है, दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मास, क्योंकि इसका मास सबसे कम है। उसके बाद के जो भी एटम्स हैं उनका मास इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो E/m रेशियो सबसे कम किसका आता है? बिकॉज मास ऑफ हाइड्रोजन इज मिनिमम, सो E/m रेशियो इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, since the mass of hydrogen is minimum, so E/m ratio is maximum for proton. इसको प्रोटॉन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हाँ एक प्रोटॉन ही बचता है हाइड्रोजन आयन में। अब ये जो प्रोटॉन्स है इनके लिए जो E/m रेशियो आती है दैट इज 9.5 into 10 to the power 4, ठीक है, this is the maximum E/m ratio for a proton. So what are these anode rays made up of? These are made up of the ions which are formed from the gas atoms. So they move towards the cathode, और अगर कैथोड परफोरेटेड है उसमें होल्स हैं तो ये रेस पास थ्रू होंगी, और जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन हमने यहाँ रखा है बिहाइंड द कैथोड दैट ग्लोज, ठीक है, so that kind of shows that the rays are coming from anode. बट ये मटेरियल ऑफ एनोड से नहीं आ रहा है, ये मटेरियल ऑफ एनोड से नहीं आ रही है, कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम दीज गैस एटम्स, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टीज भी कैथोड रेज जैसी थी, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस एंड दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दी द ऑपोजिटली चार्ज्ड मेटल प्लेट्स, और E/m रेशियो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं था, तो प्रोटॉन के लिए मैक्सिमम जो रेशियो आता है दैट वाज कैलकुलेटेड, right, and E/m ratio is not constant, so that we have to remember. So E/m ratio आ गया, तो यहाँ से फिर again the mass of proton was calculated, E/m versus E, the charge on proton was calculated, and then वहाँ से mass. So mass of proton was found to be, that we've already discussed, 1.673 into 10 to the power -27 kg, ठीक है। तो गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड प्रोटॉन, थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एंड गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स, दीज प्रोटॉन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द एनोड रेज। ओके, देन सून आफ्टर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब डिस्कवर हो गए तो उसके बाद न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चार्विक। अच्छा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई, बीच में रादर मॉडल्स आए, थॉमसन्स मॉडल, देन दिस वन रदरफोर्ड्स मॉडल, है ना। तो विल टॉक द अबाउट मॉडल्स आफ्टर द डिस्कवरीज, बट मॉडल्स यहाँ पर आ गए थे। तो मॉडल्स में क्या होता है, किस तरह से अरेंजमेंट ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो थॉमसन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड, तो थॉमसन मॉडल उसके बाद आ गया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो गया था। फिर रदरफोर्ड आल्सो गिव हिज मॉडल, सो इवन आफ्टर द रदरफोर्ड्स मॉडल न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। सो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट हुई, आई थिंक ऑलमोस्ट 20 years आफ्टर रदरफोर्ड गिव हिज मॉडल। अच्छा, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी लेट क्यों हुआ? क्योंकि एक तो वो न्यूट्रल पार्टिकल्स थे, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, सो दैट इज व्हाई दे वर डिस्कवर्ड वेरी लेट। अच्छा, कैसे डिस्कवर हुआ? जब मास ऑफ एटम को कंपेयर किया गया, सो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, और प्रोटॉन्स कंट्रीब्यूट टू द मास ऑफ एन एटम, बट जो मास ऑफ एटम था वो प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट नहीं था। जब भी मास ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट हो रहा था तो एटम का मास प्रोटॉन्स के बराबर नहीं था, इट वाज स्लाइटली हायर। सो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि कोई एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है which should be neutral, because
प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे का चार्ज न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, सो दे आर ऑलरेडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो दैट मीन्स जो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है दैट शुड बी न्यूट्रल बट इट शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू मास। ठीक है, तो इस तरह से फिर न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। तो चार्विक ने क्या किया, चार्विक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन्स, ही बम्बार्डेड सम लाइटर एटॉमिक पार्टिकल्स विद हीलियम, जैसे कि बोरॉन। ठीक है, सो ये बम्बार्डेड सम लाइटर particles like beryllium, boron with helium. So what did he discover? जब उसने bombardment किया, देखो ये बोरॉन और हीलियम है, यहाँ पर ये क्या है, एटॉमिक नंबर्स, दीज आर मास नंबर्स। सो व्हेन वी राइट डाउन द रिएक्शन, तो ध्यान रखना कि दोनों तरफ पे एटॉमिक नंबर्स, मास नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, 5 + 2 7 + 0 7, 11 + 4 15, 14 + 1 15. So mass numbers and the atomic numbers must be balanced on both the sides. So when boron was bombarded with helium, तो एक न्यू आपके पास एटम बना नाइट्रोजन का, और साथ में कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स एमिट हुए। So these neutral particles were called as neutrons by Chadwick. ठीक है, and these neutral particles, this contributed to the mass of an atom. And they were present inside the nucleus. ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट उसमें बेरिलियम के साथ किया, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट। सो बेरिलियम एंड बोरॉन, जो लाइटर एटॉमिक पार्टिकल्स थे, they were bombarded with helium. So here we get carbon and neutrons are also produced in the process. Take this as 12. ठीक है, तो बेरिलियम किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन में, और साथ में कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स जो एमिट हुए उसको क्या बोला गया, न्यूट्रॉन्स। So that was how electrons, protons and neutrons were discovered. Okay, then simultaneously जब ये डिस्कवर हो रहा था तो रेडियोएक्टिविटी वाज आल्सो डिस्कवर्ड, है ना, कि कुछ, व्हाट इज रेडियोएक्टिविटी, एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम सम सब्सटेंसेस वर ऑब्जर्व्ड। सो हेनरी बैकरल करके एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने रेडियोएक्टिविटी को ऑब्जर्व किया in substances. Now what is radioactivity or radioactive decay? How do you define radioactive decay? It is a spontaneous disintegration. Decay मतलब क्या, disintegration या decay भी हो सकता है, of unstable nucleus into a stable nucleus. Basically nucleus unstable है तो unstable से वो stable form में जाता है, तो spontaneous decay of unstable nucleus into a stable nucleus. ठीक है, so basically जो nucleus unstable है वो radiations emit करता है, and by emitting radiations it converts into a more stable form. और जब ये डीके हो रहा है तो इसमें एमिशंस होती है रेडिएशंस की, तो अल्फा, बीटा एंड गामा एमिशंस टेक्स प्लेस। ठीक है, द डीके रिजल्ट्स इन अल्फा, बीटा एंड गामा एमिशंस। प्लस जो एटॉमिक नंबर्स ग्रेटर देन 83 हैं, 82 इज योर लेड। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 are unstable and radioactive. So generally lead से ऊपर हम ले लेते हैं, तो lead के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कैसे हैं, अनस्टेबल है एंड रेडियोएक्टिव है। सो दे कीप ऑन जैसे से आपका कोई भी सब्सटेंस पड़ा है, कोई भी एलिमेंट पड़ा है, सो कॉन्टिन्यूसली दे कीप ऑन एमिटिंग रेडिएशंस एंड मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, सो दे कीप ऑन डिसइंटीग्रेटिंग। सपोज आपने 100 ग्राम किसी सब्सटेंस का लिया, सपोज रेडियम,
So 100 grams of radium, after some time what will happen? It will start decaying, it will disintegrate. So धीरे धीरे मास क्या हो जाएगा? मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी एंड देन जो भी उसका अमाउंट है वो रिड्यूस करता जाएगा. ठीक है. सो मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी एंड the what do you call it, the amount of the element gets reduced. Now out of these alpha, beta and gamma, इनका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. जो रेडिएशंस एमिट होती है इनकी क्या प्रॉपर्टीज है. अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस. सो काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं ना, डिसइंटीग्रेशन प्रोसेसेस. यूरेनियम गेट्स डिसइंटीग्रेटेड इनटू पोलोनियम एंड जो भी लोअर एलिमेंट्स होती हैं, है ना. तो जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है जिसका एटॉमिक नंबर उससे लोअर है एंड सम रेडिएशंस आर एमिटेड इन द प्रोसेस. सो 3 तरह की रेडिएशंस की हम यहाँ बात करते हैं. लाइक सपोज हियर यू हैव अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, सो इट इज एमिटिंग रेडिएशंस. सो सपोज दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट एंड दिस इज द नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट. तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जो रेडिएशंस जाती हैं दे आर कॉल्ड एज अल्फा रेज एंड दोज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट आर बीटा रेज and the rays which get undeflected, which are not deflected, are your gamma rays. So 3 तरह की रेज जो हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं वो क्या है? बी अल्फा, बीटा एंड गामा. Alpha rays are positively charged, so they deflected towards negatively charged plate, और vice versa ना. बीटा नेगेटिवली चार्ज है, so पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, और गामा रेज कैसी होती है? अनडिफ्लेक्टेड, बिकॉज दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज. अब अल्फा पार्टिकल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? So these alpha rays are composed of alpha particles, beta, gamma. ठीक है. So alpha particles basically क्या है? Doubly charged helium nucleus. तो उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे ही करते हैं जैसे हम हीलियम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं. So what are alpha particles? They are actually doubly charged helium nuclei. So ये आपका हीलियम एटम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड इट हैज 2 प्रोटॉन्स, राइट, व्हिच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दो तो क्या बचा? हीलियम का न्यूक्लियस. ये जो हीलियम का न्यूक्लियस इसके ऊपर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव. तो दिस इज योर डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस. दिस एक्ट्स एज द अल्फा पार्टिकल. ठीक है. सो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस. सो नंबर ऑफ यहाँ पर न्यूट्रॉन्स भी हैं, दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो टोटल मास 4 है और 2 प्रोटॉन्स है, तो एटॉमिक नंबर वी कैन टेक इज 2. तो वी कैन रिप्रेजेंट अल्फा पार्टिकल एज सिमिलर टू अल्फा, जिसे हम अपना हीलियम एटम रिप्रेजेंट करते हैं, 2He4. बीटा पार्टिकल्स इज नथिंग बट अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको इलेक्ट्रॉन्स जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गामा रेज आर electromagnetic rays, do not carry any charge. And electromagnetic rays की और क्या प्रॉपर्टी होती है? They travel with the velocity of light. Electromagnetic rays travel with velocity of light. So that is 3 into 10 raised to power 8 meters per second. What else? और क्या डिफरेंस है तीनों में? ठीक है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस का चार्ज क्या होता है? मास क्या होता है? व्हाट इज द चार्ज इन मास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस का चार्ज क्या लेते हैं? 0, है ना. दे आर न्यूट्रल, दे डोंट कैरी एनी चार्ज. एंड मास क्या होता है? मास इज ऑल्सो टेकन टू बी 0. So they do not possess any charge and massless. So mass is assumed to be 0 and charge is also assumed to be 0. बस ये ध्यान रखना है. They are like electromagnetic rays. They travel with the velocity of light. और जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके
ये इलेक्ट्रॉन से कंपोज्ड है, इनका वेलोसिटी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सो लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनका वेलोसिटी होता है 1/10 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो वेलोसिटी हियर इज 1/10 द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो कितना हो जाएगा, 1/10 करो वेलोसिटी ऑफ लाइट का, 3 × 10⁷ मीटर्स पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 1/10 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁷ मीटर्स पर सेकेंड। अब अगर हम बात करें कि पेनिट्रेशन पावर की, विच रेज आर मोर पेनिट्रेटिंग आउट ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा, सो द पेनिट्रेटिंग पावर डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। अब सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका है, बिकॉज दीज आर radiations, so penetrating power of the radiations, the tendency to penetrate depends upon the velocity of the rays. The penetrating power is directly proportional to their velocity. Now what is the order of velocity? Just see, सबसे ज्यादा velocity किसका है, गामा। ठीक है, 10⁸ है ना, ये भी 10⁸ है, ये 3 है, ये 2 है। ठीक है, तो उसका ज्यादा है। सो अल्फा, बीटा, गामा, गामा का सबसे ज्यादा है, देन बीटा, और इसका 10⁻⁷ है तो उससे कम हो गया। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द velocity and the same order is followed for their penetrating power. So gamma radiations are like more penetrating as compared to beta, and alpha is less penetrating than the other two. ठीक है, फिर एक और टेंडेंसी हम इनकी देखते हैं, दैट इज द आयनाइजिंग पावर। तो आयनाइजिंग पावर इज डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। जिनके ऊपर ज्यादा हायर चार्ज होते हैं वो ज्यादा आयोनाइजेशन कॉज करता है। ठीक है, सो अगर हमने सपोज ये 3 रेडिएशंस लिया और हम देख रहे हैं कि किसकी टेंडेंसी टू आयोनाइज इज मोर, सो दैट इज मोर फॉर द पार्टिकल्स विच आर मोर चार्ज्ड। ठीक है, तो अब इनका चार्ज कंपेयर करो, किसके ऊपर क्या चार्ज है। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस, 2 पॉजिटिव चार्ज है, और बीटा पे जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है -1, एंड द गामा रेज आर न्यूट्रल। ठीक है, आयनाइजिंग पावर डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। ठीक है, सो अल्फा, बीटा, गामा। सो अल्फा डबली चार्ज है तो इसके ऊपर हायर चार्ज है, सो द आयनाइजिंग पावर विल बी मोर फॉर अल्फा। बीटा पार्टिकल्स में क्या है, -1। ठीक है, सो लेसर देन दिस, एंड गामा इज न्यूट्रल, सो उसका आयनाइजिंग पावर सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेंबर आयनाइजिंग पावर इज मोर फॉर द पार्टिकल्स विच आर मोर चार्ज्ड। सो अल्फा पार्टिकल्स आर मोर चार्ज्ड, सो देयर आयनाइजिंग पावर इज मोर। बीटा का चार्ज 1 यूनिट है, इसका 2 यूनिट्स चार्ज है, इसका 1 यूनिट है, और गामा कैसा है, न्यूट्रल, तो गामा का आयनाइजिंग पावर सबसे कम होता है। तो जिस पर्टिकुलर पार्टिकल का ज्यादा चार्ज है वो ज्यादा आयनाइजेशन करेगा। ठीक है, सो दीस आर द जस्ट द बेसिक्स। The next we'll talk about the models of atom.